ओके हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एज यूजुअल हम लोग थोड़ी लेट हैं, बट इट्स ओके। आज इट इज़ ओके, आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। आज के আমরা আলোচনা করব প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন নিয়ে। অবশ্যই তার আগে তোমরা বা আপনারা চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখবেন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। यूजीसी नेट जून 2025 চেয়ারে 7 জানুয়ারি 2025 পিওয়াইকিউ পেপার্স নিয়ে এসেছি আমি। ডিআই ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন আমরা নেক্সট ডে আগামীকাল বা আগামী পরশু দিন আমরা করব। লেটার সিরিজ আমরা প্র্যাকটিস করব, ম্যাথগুলো রেখে দিয়েছি। ইভেস ड्रॉपिंग स्नूपिंग ग्रे हैट हैकर, प्रथम बांग्ला बोली तब हिंदी, पहले मैं बंगाली में बोल रही हूँ फिर हिंदी में। यहाँ पे आज लेकर आने का क्यों लेकर आई, इस पर क्या मतलब है, मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ। इवेस EAVES इवेस ड्रॉपिंग स्नूपिंग ग्रे हैट हैकर ट्रोजन, ये सारी चीज़ें ICT से जुड़े हैं, तो आपको ये थोड़ी डिटेल में इस टाइम पे देखनी ज़रूरी है। पेरिस एग्रीमेंट के साथ ग्लोबल वार्मिंग अटैच्ड है, और पेरिस एग्रीमेंट के साथ और कितने ज़्यादा एग्रीमेंट, कितने सारे एग्रीमेंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करो, पूछे जाएंगे ज़रूर किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में पूछे जाएंगे और अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे ज़रूर। UGC NAC HEFA NIRF, इन सारी चीज़ों की सिर्फ फुल फॉर्म नहीं, इनके काम क्या है, ये करते क्या है, इसको पढ़ो और याद रखो। इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद रहेंगे। स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यूज़, आपको आप जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए क्या स्किल आपको फेस करने पड़ते हैं, क्यों। इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मैं बताई हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ इसको गूगल करके अपनी हिंदी हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। आई एम सो सॉरी कि मैं बंगाली कहते कहते हिंदी में चली गई, क्योंकि थोड़ी डाइवर्ट हो गई मेरी माइंड एंड आपको नॉइज़ इस पर आ रहे थे, बट ये हर एक घर की कहानी है। ये मॉम का हम लोगों के लिए सोचना बोलना ये कॉमन है और बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल भी है। तो मैं आपको बंगाली में हिंदी में फिर से शुरू करती हूँ, मतलब আমি पहले बेंगली में कह लेती हूँ। तो এখানে আমি ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন আগামীকাল বা আগামী পরশু দিন নিয়ে আসবো, লেটার সিরিজও তাই করব। আমি আজকে প্রশ্নের উত্তর টু দ্য মানে পয়েন্ট আমি নিয়ে এসেছি, প্রশ্ন নিয়ে আসিনি, প্রশ্নের উত্তর আমি পরের দিন নিয়ে আসবো। কিন্তু তোমাদের কি কাজ, তোমরা কিভাবে এই মুহূর্তটাকে ডিল করবে, এই প্রশ্নগুলোকে কিভাবে তোমরা এই মুহূর্তেও যদি এইভাবে পড়ো তাহলে সঠিক উত্তর ঠিক করে আসবে, এবং পরীক্ষা হলে এগুলো থেকে প্রশ্ন দেখতে পারবে। কিভাবে আমি সেটা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আর কোনো রকম স্কিপ করা যাবে না, ঠিক আছে। ইভেস ড্রপিং মানে স্নুপিং গ্রে হ্যাট হ্যাকার ট্রজন, বানান আশা করছি বোঝা যাচ্ছে। একটু তাড়াহুড়োতে যদি বোঝে না গিয়ে থাকে আমি দুঃখিত, পরের দিন অবশ্যই আমি আরও ভালো করে নিয়ে আসবো, পরিষ্কার করে লিখে নিয়ে আসবো। তো এগুলো তোমরা একটু গুগল সার্চ করে পড়ো, আর বেশি লেন্দি পড়ার বা লেখার কোনো দরকার নেই। প্যারিস এগ্রিমেন্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সঙ্গে যুক্ত, তার সাথে সাথে আমি এটা বলবো যে প্যারিস এগ্রিমেন্টের সাথে আরও কত কী আছে, কিয়োটো প্রোটোকল, তারপর হচ্ছে আরও অনেক কিছু, সেগুলো পড়ো, কারণ প্রত্যেকটা শিফটে, মর্নিং শিফট ইভিনিং শিফটে প্রত্যেকটা বিষয় থেকে এক একটা প্রশ্ন আসবে। UGC NAC HEFA NIRF, এগুলোর ফুল ফর্ম শুধু জানলে হবে না, এগুলোর প্রত্যেকটার কাজ কি, কেন আমরা এগুলো পড়বো, এগুলো শুধু এই চারটে না আরও প্রচুর আছে। তো আমি বলবো যে এসপি লিটারেচারে অলরেডি হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ তিনটে ভাষাতেই কিন্তু অলরেডি এসপি লিটারেচারে পেপার 1-এর সিলেবাস আলোচনা করা হচ্ছে, যেখানে কিন্তু পেপার 1-এর সিলেবাস আমরা এমনভাবে আলোচনা করেছি যেখান থেকে যেগুলো পড়লে পরীক্ষা হলে প্রশ্ন দেখতে পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। শুধু সিলেবাস খালি দেখিয়ে দিইনি, কিন্তু সিলেবাসের সাথে বলেছি কোনগুলো পড়তে হবে আর কোনগুলো পড়তে হবে না, ঠিক আছে। যেটা অলরেডি করা আছে, তোমাদেরকে চ্যানেল পেজে গিয়ে খুঁজতে হবে বা ইউনিটের নেম লিখে ফ্রম এসপি লিটারেচার কথাটা লিখতে হবে ইউটিউব সার্চ বারে গিয়ে, তাহলে অবশ্যই এসপি লিটারেচারের ভিডিওসগুলো তোমরা দেখতে পারবে। স্কিলস টু ফেস জব ইন্টারভিউ মানে ক্র্যাক করতে বা পেতে আমাদের কী কী স্কিল বা দক্ষতা দরকার। ইথিক্যাল আর মরাল ভ্যালিউর মানে কি, এটা বাংলা বা হিন্দি চার যেটা ভাষা সেই হিসেবে বুঝে নেবে। প্রশ্নটা কী আছে পরের দিন বলছে। ডিরেকশনের একটা ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এসেছে। HTTP এর ফুল ফর্ম চাওয়া হয়েছে, ফুল ফর্ম আরেকটা কী নামে জানি আমরা, অ্যাক্রোনিম। তো এগুলোও জানা খুব দরকার, কারণ পরীক্ষা হলে অ্যাক্রোনিম দিলেও কিন্তু ফুল ফর্ম দিল না, আমরা হয়তো জানি না অ্যাক্রোনিম মানে কি, তাহলে একটা জানা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিস হয়ে গেল, তার মানে 2 নাম্বার গেল হাত থেকে। 2 নাম্বার কেন, এক একটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট নেট জেআরএফ ক্র্যাক করার জন্য বা আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সাম কোয়ালিফাই করার জন্য বা ক্র্যাক করার জন্য। স্টিপুলেটিভ ডেফিনেশন কাকে বলা হয়, স্যাম্পলিং, স্ট্র্যাটিফাইড, প্রবাবিলিটি, সিস্টেমেটিক, নন প্রবাবিলিটি। এখানে তোমাদের কাজ হলো এই 4 ধরনের স্যাম্পলিং ছাড়া আর কত রকমের স্যাম্পলিং আছে সেগুলোকেও পড়ে রাখতে হবে, কারণ এগুলো থেকে এসেছে, এখন ওগুলো থেকেও চাওয়া হতে পারে। ডেলিবারেট স্যাম্পলিং নোন অ্যাজ, ডেলিবারেট স্যাম্পলিংকে আমরা কী নামে জানি। থামস আপ কী ধরনের কমিউনিকেশনের মধ্যে পড়ে, ভার্বাল, নন ভার্বাল কী কী আছে,
তো সেটা আমরা আলোচনা করবো। ওয়াইম্যাক্স কি, এটা একটু গুগল করে পড়তে হবে। সোয়াম, মুডল, ওপেন অ্যাক্সেস, এইচ ইন্ডেক্স। আজকে 15টা টপিক নিয়ে এসেছি, তার মধ্যে আমি তোমাদেরকে বলি 15টার মধ্যে দুটো তুমি লেটার সিরিজ আর ম্যাথমেটিক ডিআই তো পরে আগামীকাল বা পরে নিয়ে আসবো। কিন্তু এখানে মুডল, ওপেন অ্যাক্সেস এগুলো কিন্তু শুধু 2025-এর 7ই জানুয়ারি চাওয়া হয়নি। এই প্রশ্নগুলো 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025-এও চাওয়া হয়েছে। এই সোয়াম, এই ওপেন অ্যাক্সেস এগুলো কিন্তু আমি বলতে পারি লাস্ট 1 বছর 2 বিগত 20 বছর 25 বছর ধরে এগুলো থেকে প্রশ্ন হয়, ইউজিসি ন্যাক। তো এরপরেও যদি তোমরা এগুলো জানার পরেও যদি পড়াশোনা করে না যাও, তাহলে কার দোষ? কারোর দোষ না, আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের দোষ। ঠিক আছে, তো কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে আমি সেটা বলে দিলাম। লাস্ট মোমেন্টে যেগুলো আমরা মনে পড়বো সেগুলো মনে থাকবে। আর এগুলো এমন বিষয় যে এগুলো শুধু তোমার ওই কি বলে না পড়লে হবে এরকম না। এগুলো হলো এমন বিষয়, পরীক্ষার 10 দিন আগে ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষার আগের দিনও ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষার 1 মাস 1 বছর ধরে ইম্পর্টেন্ট। মানে এই টপিকগুলো হচ্ছে এরকম যে সারা বছর ট্রেন্ডিংয়ে থাকা টপিক, সারা বছর ইম্পর্টেন্ট, সারা বছর ইউজিসি নেট সেট এক্সামের জন্য অল টাইম মানে ইম্পর্টেন্ট। কোনো রকম বাদ বা ফাঁক ফোকর এগুলোতে রাখা যাবে না। ঠিক আছে, এখন আমরা চলে যাচ্ছি হিন্দিতে। আমি দুঃখিত যে প্রথম 1 মিনিট ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার পর আর বাকি 1 মিনিট আমি একটু হিন্দি বাংলা গুলিয়ে ফেলেছিলাম, তার কারণে আমি একটু আমার মাইন্ড ডাইভার্ট হয়ে গেছিলো। কেন সেটা তোমরা জানোই যে আমি পাশে একটু আমার মা একটু কিছু বলছিল হয়তো পাশ থেকে। যাই হোক, সেটাও একটা আমাদের জীবনে খুব বড় একটা প্রয়োজন এবং দরকার। এরকম মা চিৎকার করে বলেই হয়তো আমরা আরও আজকে ফাদার্স ডে, যদিও আজকে ফাদার্স ডেতে সবার শেষে বলছি ডেডিকেটেডলি কিছু, তবে হ্যাঁ মাঝখানে বলে দিই অবশ্যই আজকে ফাদার্স ডে বা বিশ্ব বাবা দিবস। তো আমার কাছে ফাদার্স ডে মাদার্স ডে দুটো দিন আলাদা কখনোই হতে পারে না, কারণ বাবা না থাকলে মা হতো না, মা না থাকলে বাবা হতো না। সন্তানের জন্ম হওয়ার জন্য যেমন ঈশ্বর, প্রকৃতি, ইউনিভার্স, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর দরকার, তার সাথে সন্তান এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য বা তার মানে ভ্রূণটা যে প্রাণটা যে সঞ্চার হয় মায়েদের যে গর্ভে, সেটার জন্য দুজন ব্যক্তির দরকার, সেটা হলো মা এবং বাবা। তো এখানে মা বাবা বাদ দিয়ে কখনোই আলাদা করে মাতৃদিবস, আলাদা করে পিতৃদিবস আমি মানি না, বা এটাকে আলাদা করে পালন করা মানে আমরা পালন করি বিশ্ব ভাষা দিবস, তারপর হচ্ছে পরিবেশ দিবস, সব কিছু পালন করি, সব ঠিক আছে। কিন্তু আমার মতে এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস হোক বা ভাষা দিবস হোক বা হচ্ছে মাতৃদিবস, পিতৃদিবস, তারপরে হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন ডে হোক বা যে কোনো কিছু ডে আছে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে সারা বছর 365টা দিনই একদিকে যেমন রাগ থাকবে, একদিকে যেমন ক্রোধ থাকবে, একদিকে যেমন জেদ থাকবে, আরেকদিকে যেমন হিংসা থাকবে, আরেকদিকে ভালোবাসা থাকবে, আনন্দ থাকবে, ফুর্তি থাকবে, ঝগড়াঝাটি সব কিছুই থাকবে। তো 365 দিনে 24 ঘন্টা করে যে আমাদের সময় থাকে, তার মধ্যে 12 ঘন্টা যদি আমরা নেগেটিভ বা একটা খারাপ মুডের সাথে ডিল করি, বাকি 12 ঘন্টার জন্য আমরা পজিটিভ একটা আনন্দময় মুহূর্তের সাথে ডিল করতে পারি। আর আমার কাছে প্রত্যেকটা দিন একদিনের জন্য স্পেশাল নয়, 365টা দিনই আমরা প্রতিটা দিনই সেলিব্রেট করবো, সুখ দুঃখ দুটোকে মিলিয়ে। ঠিক আছে, তো আজকে তারপরেও বলবো বিশ্ব বাবা দিবস বা বিশ্ব পিতৃ দিবস, এটাই বলবো যে সমস্ত বাবারাই ভালো থাকুক, কারণ বাবাদের কোনো তুলনা হয় না, মায়েদেরও কোনো তুলনা হয় না। বাবা মা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত, তার জন্যই হয়তো আমরা সন্তানরা পৃথিবীতে এসেছি এবং আমরা আছি, আমাদেরও পরবর্তী প্রজন্ম আসবে। তো এটাই বলবো যে পিতৃ দিবস বা পিতা দিবসে বা বাবা দিবসে মাকে বাদ দিয়েও বাবা দিবস হবে না, বাবাকে বাদ দিয়ে মা দিবস হবে না। তো আমি এটাই বলবো সমস্ত মা বাবারা ভালো থাক, সুস্থ থাক। আর যে বা যারা মানে কোনো কারণবশত অনেক আগে চলে গেছেন বা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, এই রিসেন্টলিও একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়ে গেল, আমি সবার আত্মার শান্তি কামনা করব মন থেকে। আর প্রত্যেকটা পিতা মাতা সবাইকে এই বিশ্ব বাবা দিবসে হয়তো এই যে প্লেনে তাদের কন্যাকে হারিয়েছেন, তো থাকলে বাবা বাবা বলে ডাকতো, আজকে হয়তো উইশ করতো, কিন্তু খুব দুঃখের বিষয়। তো এই মানে এরকম এক সময় একটা বাবা মানে পিতৃদিবস আমাদের এলো যে 2 দিন আগেই 3 দিন আগে একটা এমন ঘটনা ঘটেছে যে আমরা মন খুলে মানে সেলিব্রেট করতে আমাদের ইচ্ছে করছে না, কারণ তাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে যাদের একটা পুরো পরিবার শেষ হয়ে গেছে, তাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে যাদের একটা মেয়ে 2টো মেয়ে চলে গেছে, তাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে যে 242 জনের মধ্যে 240 জন নৃশংসভাবে ওখানে মারা গেছেন, তাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে। এবং তাছাড়াও যে হোস্টেলে পড়েছেন যে MBBS ডক্টর বা যারা কর্মীরা ছিলেন, ছিলেন, তাদেরকেই জানতো তাদের উপর এসে পড়বে, তারা হচ্ছে চলে গেছেন 75 জন, আমি যতটা শুনেছি 75 জন, তো সব মিলিয়ে 300-র ওপরে লোকজন চলে গেছেন। তো এই 3 দিন আগে এই ধরনের একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর শুধু পিতৃদিবস কেন, কোনো দিবসই আমরা মন খুলে উদযাপন করতে পারবো না, আর ওই রকম মন মানসিকতার মধ্যে আমরা নেই। আর আমি এটুকুই বলবো মন থেকে সব বাবারা ভালো থাক, সব মায়েরা ভালো থাক, সবাই আলটিমেটলি ভালো থাক, এটাই হচ্ছে মেন কথা। সব দিবস যেন আমরা সবাই শ্রদ্ধার সাথে পালন করতে পারি, শুধু একদিন নয়, 365 দিনের জন্য। ঠিক আছে, তো এখন প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। আমরা এখন চলে যাচ্ছি হিন্দিতে। तो मैं पहले कहना चाहती हूँ कि मैं बंगाली हिंदी में 1 मिनट इंट्रोडक्शन दी। 1 मिनट में मैंने डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मेरी मम्मा पास में कुछ डांट रहे थे, शायद मेरी भांजी
जी को या फिर मुझे। बाय द वे ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है तो मैं फिर ट्रैक में आ गई, फिर मैं बंगाली हिंदी में डिफरेंटली बोल रही हूँ। तो मुझे आप लोगों को ये कहना है, मैं चाहती तो आप लोगों के लिए आंसर लेकर आ सकती थी, लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप खुद जब पढ़ोगे तो अकेले कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डील करोगे, और कैसे ये 2025 वाला पेपर भी आपके 2025 के जून के दिसंबर पेपर जो जनवरी में एग्जाम हुए थे 7 जनवरी को, वो पेपर कैसे आपको जून 2025 के नेट जेआरएफ पाने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं वही चीज़ें आपको बोलने जा रही हूँ। तो पहले तो डीआई और लेटर सीरीज मैथमेटिकल टॉपिक मैं आप लोगों के लिए 1-2 दिन बाद लेकर आ रही हूँ, और मैचिंग में ईवेस ड्रॉपिंग बोला गया है, स्नूपिंग, ग्रे हैट, हैकर ट्रोजन, ये आईसीटी से है। ये आपको गूगल पे सर्च करनी होगी, बंगाली हिंदी इंग्लिश जो आपको समझ में है उससे समझो, अपने उसी लैंग्वेज से टाइप करो। पेरिस एग्रीमेंट के साथ ग्लोबल वार्मिंग अटैच्ड है, और कैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल आदर्स जितने सारे हैं वो सारे डिटेल में पढ़ो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि पेपर 1 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 कहीं भी जाओ क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। अगर नहीं दिखने को मिलेंगे तो प्लीज़ आके मुझे ज़रूर कंप्लेन कर देना बॉक्स वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में, या फिर लाइव में जब आऊँगी तब, ठीक है। और मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी। यूजीसी, नैक, HEFA एंड हिफा, HEFA एंड NIRF, इसके फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इन सारे विषय का काम क्या है, ये हम क्यों पढ़े, क्योंकि इनको पूछे जाएंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और मतलब ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं MCQ टाइप ऑप्शंस दिए जाएंगे। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, मैचिंग भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप भी आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यू फेस करने के लिए हमें कैसे स्किल्स या फिर दक्षता चाहिए हमें, या फिर इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ क्या है इसको समझो। डिरेक्शंस मैथ आए थे, मैथमेटिकल रीजनिंग से हम पढ़ेंगे। इसके बाद HTT पे फुल फॉर्म आए थे। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्रोनिम, यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि फुल फॉर्म तो हमें पता है, लेकिन एक्रोनिम को वो हम फुल फॉर्म को और एक नाम से भी जानते हैं विच इज़ एक्रोनिम। तो एक्रोनिम के मीनिंग भी आपको पता होना ज़रूरी है, आपके जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में, चाहे हिंदी, बंगाली, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेजेस। देन स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या है, ये 4 ऑप्शंस दी गई थी, आपको चूज़ करने थे। सैम्पलिंग यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, प्रोबेबिलिटी, सिस्टमेटिक, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 4 सैम्पलिंग छोड़कर और कितने सारे सैम्पलिंग है और आपको वो याद रखनी है, क्योंकि शायद हो सकते हैं ये 4 कोई और पेपर में, मतलब कोई और सब्जेक्ट में पूछे जाए, और अलग जो प्रोबेबिलिटीज, अलग जो सैम्पलिंग होते हैं वो आपके इंग्लिश या फिर कोई और सब्जेक्ट में पूछे जाए। ऐसे पेपर को डील करनी चाहिए। डेलिबरेट सैम्पलिंग को हम किस नाम से जानते हैं, थम्स अप किस टाइप की कम्युनिकेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल, आपको चूज़ करनी है। वाईमैक्स के फुल फॉर्म ये 2025 में मुझे ये नए देखने को मिली, आपको पढ़नी है और उसको गूगल करके रखनी है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं 2025 में एक शिफ्ट में पूछे गए मतलब आपको नहीं पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 25 जून टू 29 जून 5 दिन एग्जाम हो रहा है, इवनिंग मॉर्निंग 10 शिफ्ट में हो रहा है। तो 10 शिफ्ट मतलब 10 क्वेश्चन सेट आपको देखने को मिलेंगे, कहीं भी एक आपको देखने को मिल सकता है ये वाला। फिर स्वयं, मॉडल, ओपन एक्सेस एंड एच इंडेक्स। ये स्वयं एंड ओपन एक्सेस ना मतलब लास्ट 20 साल से ये चले आते हैं आ रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना है। और मॉडल से एच इंडेक्स, मॉडल से हमारे इंट्रोडक्शन हुए लास्ट 4-5 साल पहले, तो आपको क्या करनी होगी, मॉडल को ये नहीं कह सकते 2024 में नहीं पूछे गए थे, ये 20 में पूछे गए, 22 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए, 2025 में भी पूछे गए। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप सोचोगे ये तो लास्ट वाला एग्जाम में था, शायद हमको नहीं पूछेंगे, ये बहुत ही गलत काम होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे आपके सब्जेक्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में ना हो, चाहे किसी और के सब्जेक्ट में इवनिंग शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इन सारी चीज़ों से पूछे जाएंगे। यू कांट अवॉइड दीज थिंग्स। तो मैंने ये पे 15 टॉपिक लेकर आई और मैंने आपको बताने की कोशिश की कैसे अप्रोच के साथ, कैसे आपको अभी भी ये 10 दिनों में कैसे आप 9-10 दिन में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और एग्जाम हॉल में जाके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम से पहले हम जो पढ़ते हैं हमें ज़्यादा याद रहते हैं और सही करने की, आंसर के क्वेश्चन के आंसर को सही करने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो ये सारी बातों को ऐसे ही मत जाने देना और इसकी भी मत करना वीडियो को। आप अगर समझदार हो और आप नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये सारी बातों को इस टाइम पे यूटिलाइज करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर अगर इस सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चन ना मिले तो मेरी इस लिटरेचर, हमारे इस लिटरेचर के लाइव चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। मैं मान लूँगी कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगर पूछे गए हैं किसी भी 5 डेज 10 शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे, अगर किसी भी शिफ्ट में ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे गए एक भी, या फिर उस एक से ज़्यादा शिफ्ट में ये सारे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, मतलब 10 में से 10 शिफ्ट में ही पूछे जाएंगे यहाँ के 10 टॉपिक्स। अगर नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो मैंने कही थी
ठीक है, हम एग्जाम से पहले ऐसे पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर. हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ. और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, आज है फादर्स डे. तो मेरे लिए कोई पापा के लिए अलग डे, मम्मा के लिए अलग डे तो ऐसे मैं सोचती नहीं हूँ. लेकिन हम जो 365 डेज एक साल में लाइफ सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, तो 24 आवर्स में से मुझे लगते हैं अगर 12 आवर्स मिला जुला के, अगर 12 आवर्स हमने कोई नेगेटिव इमोशन से, कोई बहुत गुस्से हुए, कोई जेलस हुए, कोई ख़राब सिचुएशन हुए, और बाकी 12 आवर्स हम हंसी खुशी मतलब बहुत अच्छा इंजॉयमेंट के साथ बिताएं, तो 24 आवर्स को भी सिर्फ दुख के साथ नहीं बितानी है, सिर्फ सुख के साथ नहीं बितानी, दोनों को मिक्स करके जैसे हमारी लाइफ चलती है वैसे ही मम्मा एंड पापा. मुझे लगता है कि पापा को छोड़ के मम्मा नहीं हो सकते, मम्मा को छोड़ के पापा नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो पूरे यूनिवर्स है, पूरे विश्व ब्रह्मांड है, जो हम चिल्ड्रन हैं, हम जो चिल्ड्रन हैं, हम पापा मम्मा कहते हैं, क्योंकि दोनों इंसान जब एक साथ मिलते हैं उसके बाद ही एक बच्चे की प्राण संचार होते हैं. उसी के बाद जो बच्चे दुनिया में आते हैं तब हम कहते हैं बच्चे आ गए, मम्मा पापा बन गए. जब से माँ की पेट में होते हैं, कोख में होते हैं, तब से ये शुरू हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि पापा और मम्मा को हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं, सामने भी पीछे भी किसी भी तरीके से. तो आज पापा के लिए डे है, बहुत स्पेशल है सभी के लिए, लेकिन मम्मा भी नहीं छोड़ सकते. मम्मा के डेज पे, मदर्स डे पे फादर्स को भी हम नहीं छोड़ सकते. उसके साथ तो मैं ये कहूँगी, चाहे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, चाहे लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल लैंग्वेज डे हो, चाहे मदर्स डे, फादर्स डे हो, चाहे वैलेंटाइंस डे हो, ये सारे जितने भी डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पेसिफिक एक दिन पे, हमको बीइंग अ ह्यूमन हमें ये सारे डेज को 365 डेज को ही सेलिब्रेट करनी चाहिए. ऑब्वियसली सिर्फ हंसी खुशी और एंजॉयमेंट के साथ करेंगे तो ये नहीं होगा. ये 365 हम चाह कर भी हर टाइम सुख में नहीं रह सकते, दुख और सुख मिलकर हमारी ज़िंदगी चलती है. तो मैं यही कहूँगी, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के, सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, सिर्फ पूरे विश्व ब्रह्मांड के, पूरे ये होल यूनिवर्स के मम्मा पापा बहुत स्वस्थ रहे, मस्त रहे. और ये जो 3 दिन पहले प्लेन क्रैश हुए हैं, तो ये जो 3 दिन पहले ये घटना हुई है, किसी के एक फैमिली पूरे वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, किसी के बेटी जा चुकी है, पापा अभी खून के आंसू रो रहे हैं. और अगर बेटी होती तो शायद आज पापा को विश कर देती, प्लेन में रह के ही विश कर देती. तो ये इतने दर्दनाक खतरनाक इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता है कि इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में किसी के भी मन में फादर्स डे, मदर्स डे को बहुत अच्छी, जिसके दिल में ह्यूमैनिटी है, उनके दिल में सेलिब्रेशन का कोई भी गुंजाइश रहेगी नहीं रहेगी. वो लोग मम्मा पापा को रेस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए बहुत कुछ काम करेंगे, लेकिन वो जो दिल से जो सेलिब्रेट करनी, सज कर धज कर सेलिब्रेट करनी, रेस्टोरेंट में जाकर ये करने की मानसिकता, ये करने की चाहत, ये करने की क्षमता इस वक्त मेरी तो नहीं है. मुझे लगती है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में जिनके अंदर ह्यूमैनिटी है, उन लोगों का भी क्षमता नहीं है इस टाइम पे उतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के, अलग ईयर्स की तरह. लेकिन ये फादर्स डे से पहले 3 दिन वाले जो प्लेन क्रैश हुए थे, इसके लिए मैं तो मेरी तो दिल बहुत ही दुखी है, क्योंकि मैंने भी अपने दादा को, उनको नेचुरली मैंने खोए हैं उनके बीमारी की वजह से, बाय द वे. लेकिन ये जो घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक थे. भगवान करे किसी के साथ ऐसा कभी भी ना हो. और वो उस फैमिली जिनके 5 मेंबर्स चले गए, उनके पापा को मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि सिर्फ उनको नहीं, मतलब 242 मेंबर्स जो थे, 240 मेंबर्स जो डेथ उनके हो चुके हैं, उन सारे मेंबर्स के लिए मैं दिल से शांति प्रे करती हूँ. उनको आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के लोगों को क्षमता दे ये ओवरकम करने की. बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करनी पड़ेगी. और मैंने ऑलरेडी लाइव में भी कही है, और मैं ये कहूँगी, और जिनके जो खोए हैं वो वापस नहीं आ सकते. 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ से भी आप किसी की जान नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि जो प्राइसलेस है उसको प्राइस से आप कैसे खरीदोगे, है ना. तो मैं यही कहूँगी कि सभी लोग को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ऐसी खतरनाक दर्दनाक दुर्घटना आने वाले फ्यूचर में किसी के साथ भी ना हुए, और सावधानी से रहनी होगी. हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल माय फादर्स. मतलब मेरी पापा सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबके पापा ही मेरे पापा है. और ये सभी पापा मम्मा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और सभी लोग एक्चुअली स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ज़िंदगी में आगे बढ़े. और मैंने बहुत कुछ कह दी, लेकिन
आज हूँ, बोल रही हूँ, शायद मेरे साथ भी कभी कुछ गलत हो जाए तब मैं कहने के लिए ना रहूँ, लेकिन जो मेरी सोच विचार है दिन ब दिन, जो मैं अपने आप को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ वही मैं कर रही हूँ। नो दिखावा, जो मन में है वो सामने कह दी। डेफिनेटली 24 आवर्स मैं भी ऐसी ही बातें नहीं करती हूँ, मुझे भी गुस्सा आती है, मैं भी इंसान हूँ, नेचुरल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो वो प्रोबेबिलिटी वो सब चीज़ें तो आएंगी ही, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मिस अपडेट्स। साथ से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। मेरी नमन है सभी को, सभी लोगों के लिए मेरी श्रद्धा, और जिनके साथ भी जो भी दर्दनाक खतरनाक दुर्घटना रिसेंटली हुए और पास्ट में भी हुए थे, उन सभी को मेरे दिल से बहुत ज़्यादा मतलब श्रद्धा कि उन लोगों को भगवान क्षमता दे वो सारी चीज़ें ओवरकम करने की। और डेफिनेटली मैंने भी अपनी एल्डर ब्रदर को खोए हैं 6 महीने पहले, हमें भी, हमारी पूरे फैमिली को भी भगवान क्षमता दे कि हम ये बहुत अच्छे तरीके से दिल में शांति रखकर ये काम करें और आगे बढ़े, और मेरी दादा की आत्मा को भी शांति मिले, और सभी को जो चले गए हैं उनको शांति मिले, और जो है उनको टिके रहने के लिए, डटे रहने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्षमता दे। मैं यही कह सकती हूँ, और बीइंग अ ह्यूमन और क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन यही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लेसिंग्स, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, सभी लोग अच्छे से रहिए। নমস্কার সবাইকে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আমরা একে অপরের সাথে এইভাবেই এগিয়ে যেতে থাকবো, বেঁচে থাকলে, সুস্থ থাকলে অবশ্যই সবাই সবসময় সাবধানে থাকবো, এবং একে অপরের জন্য খারাপটা কখনোই প্রার্থনা করবো না। ভালোটা করতে না পারি, অ্যাটলিস্ট মানুষ হিসেবে খারাপটা করার জন্য চাইবো না, ভাববো না, কিন্তু একটু একটু করে নিজেকে নিজের দুষ্টুরি থেকে শিখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো, নিজেকে উন্নত থেকে উন্নততর করার চেষ্টা করবো, আর অবশ্যই পারলে দুটো মানুষের পাশে দাঁড়াবো। সেরকমভাবে মনের দিক থেকে এনার্জেটিক্যালি, ইমোশনালি, ফিজিক্যালি, ইকোনমিক্যালি কারোর ক্ষতি চাইবো না এবং করবো না। পারলে মানুষের ভালো করতে পারলে করলাম, না পারতে পারলে অধিকার কারণ নেই কারোর খারাপ করার বা খারাপ চাওয়ার। তো নমস্কার, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি সবাইকেও, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ অল, টেক কেয়ার।